Hello everyone, welcome to Saril Shiksha Online, and in this video we will learn about the divisibility rules, and we will also see the methods how to find out the divisibility rules. तो जिसको हम बोलते हैं osculator method. So first of all we will understand what an osculator is and how is it going to help you to find the divisibility rules. सबसे पहले तो if I talk you to like about the divisibility rule of 2, तो आप simply बोलेंगे कि yes, when a number has like even number at unit place, so you say when there is a like even number at unit place, then that will be divisible by 2. बहुत ही अच्छा. And now if I ask you the divisibility rule of 3, so 3 may you have that sum of all the digits must be divisible by 3. ऐसे बहुत सारे जो रूल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं डेफिनेटली इफ यू वांट टू लर्न दीज रूल्स. यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा है. But what if I ask you the divisibility rule of 71 or 79 or 81, right? So we cannot just learn all the divisibility rules, और उसमें हमारा जो एक मेथड आता है ऑस्किलेटर मेथड वो हमें हेल्प करेगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऑस्किलेटर होता क्या है. तो ऑस्किलेटर होता है, सो व्हाट इज एन ऑस्किलेटर. ऑस्किलेटर में हम दो तरह के ऑस्किलेटर्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव ऑस्किलेटर एंड नेगेटिव ऑस्किलेटर. तो सबसे पहले पॉजिटिव ऑस्किलेटर के बारे में हम बात करेंगे. सो अ पॉजिटिव ऑस्किलेटर इज it is a number one more than one before when a number ends in 9. मतलब one more than one before when a number ends in 9. तो number should end in 9. अब क्या मतलब है इसका. Suppose I ask you to find the osculator of 29. तो one more than one before. वन बिफोर मतलब वन बिफोर द यूनिट प्लेस, ध्यान रखेंगे वन बिफोर द यूनिट डिजिट. ओके, तो यूनिट डिजिट से पहले एक नंबर जो है उसमें हम कर देंगे ऐड कर देंगे वन मोर देन बोल रहा है ना, तो 2 + 1 3. सो 3 विल बी द ऑस्किलेटर ऑफ 29. अब आपके दिमाग में बार बार एक बात चल रही होगी कि दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दीज ऑस्किलेटर्स, व्हाई डू आई हैव टू रिमेंबर इट. So first of all, you don't have to remember it. You can just calculate it, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ. And secondly, we are going to do a method, the oscillator method. उसके लिए we need oscillators. Okay? So now, अब suppose मैंने आपसे पूछा कि what is the oscillator of 59, तो again 9 पे end कर रहा है. You don't have to think more about it and then go to the 5. And in 5, what you do, you just add 1 and 6 will be the oscillator. Clear? अब suppose a number is not ending in 9. Suppose a number is ending in 1. So 21. So we will make it a multiple of 21. जैसे उससे उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाए, 9 हो जाए. तो मैं 21 से को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसका यूनिट प्लेस 9 हो जाए. I'll just multiply it by 9. So I'll get 9 and 9 2s are 18, right? तो अब ये 9 पे एंड कर गया. अब इससे पहले कौन सा नंबर है, पूरा 18 ले लेंगे, ठीक है. तो नाउ 18 + 1 19 विल बी द ऑस्किलेटर. क्लियर. सिमिलरली इफ अ नंबर इज एंडिंग इन 3, मान लेते हैं 13, तो 13 का ऑस्किलेटर क्या होगा, विल अगेन मेक इट 9. सो 13 3 से 39 हो जाएगा. तो 9 से पहले आ रहा है 3 + 1 4 विल बी द ऑस्किलेटर. Now why are we so much interested in calculating these? Because now we will see whether a number is divisible by another number or not. Suppose मैं आपसे बोलूँ oscillator of 7 क्या होगा, तो oscillator of 7, so it will be again 7 into 7 कर देंगे because 7 7 का 49 होगा, तो आपके पास 9 आ जाएगा यूनिट प्लेस में. तो 4 + 1 will be 5.
So 5 will be the oscillator of 7. तो अब अगर आपने चेक करना है whether a number is divisible by 7 or not, what do? We will oscillate the number with the oscillator of 7. क्या मतलब है? अब आपसे पूछते हैं is 112, okay, let me just erase the other part. So आपसे पूछा is 112 is divisible by 7? Okay, that's a question. So what do? We will osculate 112 by oscillator of divisor, and here divisor is 7. So oscillator of 7 is 5. अभी हमने यहाँ पे चेक किया. ऑस्क्यूलेट करने का मतलब होता है आप यूनिट प्लेस को इस ऑस्क्यूलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, so 2 multiplied by 5, एंड इसको ऐड कर देंगे टू द रेस्ट ऑफ द नंबर 11. ठीक है, so it will become 11 plus 10, that will be 21. We will oscillate it again. So now 1 into 5 plus 2, so we get 7. So when we are getting 7 or a multiple of 7, then we can say that this whole number is divisible by 7. Clear? Very good. So again, if I ask you to calculate, to tell me whether 2844 is divisible by 7, तो आप check करके बताएंगे. I am taking another example. Suppose if I ask you to calculate, to tell me whether 1058 is divisible by 23. अब क्या करें? सबसे पहले हम 23 का ऑस्किलेटर निकालेंगे. तो 23 को हमने क्या करना है? यूनिट प्लेस पे 9 लाना है. सो इट विल बिकम 69 एंड 6 आया है यहाँ पे, तो 7 विल बी इट्स ऑस्किलेटर. अब हम इस नंबर को ऑस्किलेट करेंगे, तो 8 into 7 प्लस में किसको लाएंगे? 105 को. व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, यू विल गेट 161. अगेन वी विल ऑस्किलेट इट. So now 1 multiplied by 7 plus 16. So what do we get? We get 23. तो या तो डिवाइजर खुद आ जाए या 0 आ जाए. ठीक है, 0 तो वैसे आएगा नहीं बिकॉज यू आर एडिंग इट. नेगेटिव ऑस्किलेटर्स में वी विल से कि वी विल सी कि 0 भी आएगा. ठीक है, तो या तो नंबर इटसेल्फ और अनदर मल्टीपल ऑफ दैट नंबर अगर वो आ जाता है यहाँ पे, या एक नंबर अपने आप को बार बार रिपीट करता जा रहा है. सपोज इफ आई डू इट, अब आपको बार बार 23 23 23 मिलता जाएगा, तो उस केस में भी हम क्या बोलते हैं? दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय द गिवन डिवाइजर. वेरी इजी. Again, these methods seem to be lengthy, but once you are done with these methods, or when you have a very large number to check whether it is divisible by some other given number, तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे. ध्यान रखिए, ये नंबर्स हमारे सिर्फ इनमें चेक हो सकते हैं वेदर दे आर एंडिंग इन 1, 3, 7 और 9. ठीक है, नेगेटिव ऑस्किलेटर्स में भी हमें यही देखने को मिलेगा, 1, 3, 7 और 9. क्लियर? आगे चलते हैं. सो नाउ अब हमारे पास एक और टर्म आता है, दैट इज नेगेटिव ऑस्किलेटर्स. कई बार हमें नेगेटिव ऑस्किलेटर्स इजी रहते हैं. आपको देखना है वेदर द नेगेटिव ऑस्किलेटर इज द बिग नंबर और द पॉजिटिव ऑस्किलेटर. तो नेगेटिव ऑस्किलेटर में आपने क्या करना है? सपोज द नंबर इज एंडिंग इन 1. ठीक है, सपोज 21, तो जस्ट ड्रॉप द नंबर 1. ओके, ड्रॉप 1. तो आपके पास जो 2 हो जाएगा वो आपका नेगेटिव ऑस्किलेटर हो जाएगा. नेगेटिव ऑस्किलेटर विल बी 2. ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव ऑस्किलेटर और पॉजिटिव ऑस्किलेटर को आप ऐड करते हैं, यू गेट द टोटल डिवाइजर. ओके, आप खुद देख लो, इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर निकाल के देखिए. तो 21 into 9 करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 18. 9 to 18 एंड देन यहाँ पे 9, 189 हो जाएगा. और इसका ऑस्किलेटर विल बी, पॉजिटिव ऑस्किलेटर विल बी 19. तो आप देखिए, ये पॉजिटिव ऑस्किलेटर है, ये नेगेटिव ऑस्किलेटर है, दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 21. अब आप खुद देखो, इसमें ज़्यादा अच्छा कौन सा ऑस्किलेटर रहेगा आपके लिए? 2 रहेगा, छोटा नंबर है, कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगे. तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पॉजिटिव ऑस्किलेटर लेना है या नेगेटिव. कई बार अगर आप पॉजिटिव ऑस्किलेटर निकाल लेते हैं बाई चांस, तो यू डोंट हैव टू बी कैसे वरीड अबाउट इट. व्हाट यू डू, जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, सब्ट्रैक्ट दिस पॉजिटिव ऑस्किलेटर फ्रॉम योर डिवाइजर, यू गेट द नेगेटिव ऑस्किलेटर. ओके, सो इट विल बी 2 हेयर. तो अब हम क्या करेंगे? अब मुझे देखना है वेदर 1058 इज डिविजिबल बाय 21. वैसे वो होगा नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं.
नाउ अगेन ऑस्क्यूलेट करेंगे, बट इस टाइम हम ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो इट विल बी 8 into 1, राइट. 8 into, सॉरी, इसका मतलब जो ऑस्क्यूलेटर है वो क्या होगा, 2 होगा. सो इट विल बी 8 into 2, then subtracted from 105. So it will be 105 minus 16, and what will we have? We have 89, right? Yes. अब 89 को चेक कर लेते हैं. तो अगेन हम ऑस्कुलेट करेंगे. तो 9 into 2 एंड 8 में से हम इसको माइनस करेंगे. ठीक है. तो इट विल बी 18 एंड 8 माइनस 18 तो नेगेटिव में नंबर चला जाएगा. तो बहुत ही क्लियर है कि दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 21. क्लियर. तो इस तरह से हम नेगेटिव ऑस्कुलेटर्स को यूज कर सकते हैं. तो ध्यान रखेंगे जब भी हमारा जो नंबर, इफ द नंबर इज एंडिंग इन 1 और 7, आपके नेगेटिव ऑस्कुलेटर्स काम आएंगे. 1 और 7 में यू विल टेक नेगेटिव ऑस्कुलेटर, और अगर नंबर इज एंडिंग इन 3 और 9 यू कैन टेक पॉजिटिव ऑस्कुलेटर्स. ओके, इस केस में आप पॉजिटिव ऑस्कुलेटर्स यूज कर सकते हैं. मेथड विल बी इजियर. आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड रहा है. एक बार फिर आप मेरी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके चेक कर सकते हो, देख सकते हो. जहां डाउट होता है यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स, और आई विल मेक अनदर वीडियो टू एक्सप्लेन इट फर्दर. ओके, so thank you, stay tuned, and please subscribe to my channel for more such videos. All the best, bye bye.